So let's start the article 32, and this article is very important for your protection of the fundamental right and very important for your prelims exam as well. Please go to the heading. देखिए आर्टिकल 32, दिस इज रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. पी फॉर प्रीलिम्स लगाइए. विच आर्टिकल डील्स विद एनफोर्समेंट, रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. दिस इज आर्टिकल 32. आपके फंडामेंटल राइट का ब्रीच होता है कहीं तो रेमेडी इज वेयर, रेमेडी इज अंडर आर्टिकल 32. जब फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट समझाया था बहुत डिटेल में, तब समझाया था आपको. इसलिए अभी हम लोग केवल आर्टिकल 32 की बेरेक्ट लैंग्वेज को रीड करेंगे और कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं उनको देखेंगे यहाँ पर. प्लीज गो टू 32 क्लॉज 1. दिस इज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट. प्लीज हाईलाइट दिस phrase as well. This is people prelims. The court here is what? Supreme Court. It is not High Court and Supreme Court. It is only Supreme Court. So right to move Supreme Court. How? By appropriate proceedings. For what? For the enforcement of rights. This right is guaranteed. This right is guaranteed. So this is what? This is talking about the right to move the Supreme Court for enforcement of the fundamental right is guaranteed. तो guaranteed का मतलब समझिए कौन सी कोर्ट को मूव कर सकते हैं. पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझाया था आपको. इफ योर फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड, अगर आपके मूल अधिकारों को हनन होता है तो आर्टिकल 32 क्लॉज 1 में आपको यह अधिकार है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो आपके फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए. तो ये तो है बेसिक फिलॉसफी कि किसी के मूल अधिकारों का हनन हुआ तो उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है. उनको वो व्यक्ति अधिकार रखता है कि कहाँ जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है. अब समझिए इसको इस तरीके से. हमारे जो नायक हैं वो हैं घई साहब, समर्थ घई. हिज फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी हैज़ बीन abrogated anyhow. He is being denied right to equality according to him. Now he approaches the Supreme Court. Now the question is before him. Someone asks him, how can you come to the Supreme Court? क्यों नहीं आ सकता मैं, क्यों आ गए छोटी सी बात को लेकर के. Can listen mister, this right is guaranteed means this is very meaningful phrase here. My right to move the Supreme Court is guaranteed constitutionally. संविधान द्वारा मेरे इस अधिकार की गारंटी ली गई है. That is why I have every right to approach to the Supreme Court. Fine. क्या ले आए हो हाथ में? It's not properly drafted as well. This is neither a plaint, nothing else. There should be some proper presentation. Supreme Court में आ रहे हो भाई, किसने कहा? You read it. This is by appropriate proceedings. No boundation of any specific format. Even there are cases where even a letter written to the court has been taken as the petition under 32 clause 1. समझे? Because of this. So which right is guaranteed? Right to move the Supreme Court. Why you are going to Supreme Court directly? To enforce for the enforcement of my fundamental rights. What is the special feature of this? This right is guaranteed. How can you avail this guarantee? Through appropriate proceedings. So all these phrases are very important for your exam. Which court is being moved? Supreme Court. Through any appropriate proceedings. Whether it is guaranteed? Yes, it is right is guaranteed. This right is for the enforcement of the fundamental right. So I believe कि अब आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा, इन फ्रेजेस को मत भूलिएगा. This is appropriate proceedings. Right is guaranteed. Supreme Court. Come on. Now, what kind of orders can be passed by the Supreme Court? Supreme Court shall have power to issue directions or orders or writs. सुप्रीम कोर्ट कैन इशू डायरेक्शंस, निर्देश जारी कर सकते हैं, ऑर्डर्स आदेश जारी कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं. ये ध्यान रखना. These are the three different words used in article
30 clause 2. What kind of order? This is not the only writs can be issued. Issuing writ is one of the option one with the Supreme Court. Supreme Court can issue any direction, Supreme Court can issue any order, Supreme Court can issue any writ for this purpose. It is not the Supreme Court will issue only the writs. Fine. And which writs can be issued for the enforcement of fundamental right? Again, these are the question for your prelims. बचपन से आप भी पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ लीजिए एक बार और. This is what in the nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari. तो एक लहजे में आपको समझा देता हूँ. This is habeas corpus. समर्थ घई साहब को पुलिस उठा करके ले गई है, अभी पता चल नहीं रहा है, 24 घंटे पास हो चुके हैं, मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया, घर वालों को पता नहीं चल रहा है. दे कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द हैबियस कॉर्पस. एंड हैबियस कॉर्पस में क्या कहेगी सुप्रीम कोर्ट? प्रोड्यूस द बॉडी बिफोर अस, प्रोड्यूस मिस्टर घई बिफोर अस, वेयर इज ही. तो दिस इज व्हाट हैबियस कॉर्पस. इट इज द सेफ गार्ड अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन. ओके, it has been also used for the prison reform, Batra case. Mandamus, when your result is not being declared by the any public authority is not doing whatever it is expected, legally expected from that, then you can approach the Supreme Court that writ of mandamus be issued, and then you should be taken in the service, your fund should be released, whatever is your grievance. Mandamus का मतलब है डायरेक्टिंग द पब्लिक अथॉरिटी टू डू हिज ड्यूटी, वो अपने कर्तव्य करें. देन क्वो वारंटो, समर्थ घई साहब जाके बैठ के जज साहब की कुर्सी पे सीधे 30 यारी कोर्ट में गए, डायस पे जाने बैठ गए, तो जज साहब क्या कहेंगे? क्वो वारंटो. समझे? बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर हियर? When you are holding a public office and that is being challenged, Supreme Court can issue by what authority you will have to prove it. तो quo warranto में you are asked, court ask the authority by which he is holding some position. Prohibition and certiorari, these are issued to the courts. When the court entertains any matter beyond its jurisdiction, the court is being prohibited. Don't move forward now. Stop it here, prohibited, you are being prohibited. And when it has already done something which should be undone, then certiorari. So whatever wrong has been done by the court, to undo that, to reverse that, certiorari will work. To writ of prohibition will prohibit the court from further proceedings. So these are 5 writs, they have their specific meanings, and you can get the question in your prelims exam from here itself. But the question जो tricky जो next level पर हो सकता है वो ये है कि these writs can be issued by the Supreme Court, but these writs are not the all kind of writs. If the Supreme Court want to issue any writ beyond these 5, it is also possible because of this language. Please see this, including writs in the nature of this. There is possibility that there is 6 writ maybe created by the Supreme Court, and again writs are the only one tool. Beyond these writs, court can pass any direction, court can pass any order for the enforcement of fundamental right. Come on, समझ में आई नहीं आई बात? तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस यहाँ से हो सकते हैं, I have dealt all those. 32 clause 2. Now come to clause 3rd, without prejudice to the powers conferred on the Supreme Court, clause 1 and clause 2. Without prejudice to the powers of Supreme Court. समझिए, which power? Power to entertain the petition, 30 clause 1 में. Without prejudice to the powers of the Supreme Court under 32 clause 1 clause 2. कौन सी पावर थी 30 clause 1 में? 32 clause 1 में कौन सी पावर थी? टू एंटरटेन द पेटिशन थ्रू अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स, बिकॉज दैट राइट वाज गारंटेड. सेकेंडली, जो सेकेंड क्लॉज है वहाँ पे क्या था? टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट. तो उनके प्रेजुडिस ना करते हुए क्या कर सकती है? प्रीलिम्स का क्वेश्चन,
पार्लियामेंट, हाईलाइट कीजिए, पार्लियामेंट पी फॉर प्लिम्स मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट, किसी अन्य कोर्ट को सशक्त कर सकती है। कैसे करेगी पार्लियामेंट? लॉ बना के करेगी, ध्यान रखना। संसद कानून बना करके किसी अन्य न्यायालय को एम्पावर कर सकती है, किस बात के लिए? टू एक्सरसाइज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन व्हाट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। समझे? सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उन्हीं को, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं, सेम पावर्स, सभी पावर्स हैं, उनकी कुछ पावर्स को किसी अदर कोर्ट को, सपोज कीजिए सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की पावर्स हैं और ये कोर्ट है कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बी एम्पावर्ड, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बी एम्पावर्ड बाय द पार्लियामेंट। किस बात के लिए? कि नाउ यू विल एंजॉय ऑल द पावर्स। आज के बाद नो वन नीड्स टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, जाना है चले जाइए, लेकिन वही काम आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर देगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का ब्रीच हुआ है, ये कैसे हो जाएगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की पावर थी। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर कहां लिए हैं? वी आर डूइंग दिस विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, बट इन एडिशन व्हाट द पार्लियामेंट हैज डन, पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड एनी अदर कोर्ट, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। संसद ने जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको टच नहीं किया है, दोज पावर्स आर इंटैक्ट, वो रहेंगी वहां पर, उन पावर्स को टच नहीं किया है। सो दिस चेंज इज विदाउट प्रिजुडिस टू द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नंबर वन, व्हाट इज द चेंज? सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड एनी अदर कोर्ट, अदर कोर्ट मतलब अदर देन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से भिन्न किसी न्यायालय को अब संसद ने क्या कर दिया है? वो पावर्स दे दी हैं जो किसके पास थी? विच वर एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर्स थी क्लॉज 2 की, यानी कि रिट इशू करने की, यानी कि किसी भी ऑर्डर को, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट की पावर को एक्सरसाइज करने की जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां थी, वो कहा कि ठीक है आप भी वैसे ही कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो? मान लीजिए आकांक्षा जो है, आकांक्षा संगल क्या है? ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं, शी इज डिस्ट्रिक्ट जज। नाउ व्हाट शी कैन डू? शी कैन इशू द रिट ऑफ मैंडेमस, हैवियस कॉर्पस। आज तो घर पे जाके खुश लड़के कि आज मैंडेमस इशू किया, को वारंटो, सर्श्योरी। अब तक क्या हो रहा था? ये सारी पावर्स कौन एक्सरसाइज कर पा रहा था? सुप्रीम कोर्ट कर पा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट की ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, या तो सभी पावर्स या उसमें से कुछ शक्तियां दी जा सकती हैं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ करेगी उसको? विद इन द एक्सरसाइज, विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिस्डिक्शन का मतलब है जो उनका अपना क्षेत्र है, किसी जिले में जो जहाँ तक उनके जुरिस्डिक्शन है उसी जिले में वही पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास है। कहाँ पर है? क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 की बात नहीं कर रहे हैं कि राइट इज गारंटीड, वो नहीं है। लॉ बना करके जो हम देंगे 2 के बारे में देंगे कि ठीक है आप सभी ऑर्डर्स, रिट्स, डायरेक्शंस इशू कर सकते हो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट करती है, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना पड़ेगा कि कौन करेगा, ऐसा कौन कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट कर रही है। कैसे कर रही है? बाय लॉ। बड़ी ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पी। हु कैन empower the courts with the powers of 32 clause 2? It is the parliament, and how parliament can do so? Parliament can do so by making a law over this. Come on, समझ में आया नहीं आया? भाई मैंने तो पूरी जान डाल दी इसमें जितनी है मेरे अंदर। क्लॉज 4 पर आइए अब। The right guaranteed by this article, that is 32, shall not be suspended by this constitution. Oh my God. Shall not be suspended except as otherwise provided for by this constitution. ठीक है। सो अगेन दिस इज 32 क्लॉज 4 क्या कि आर्टिकल 32 क्लॉज जो राइट है दैट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट इंटरफेयर बाय मेकिंग लॉ।
if the constitution itself provides for the suspension of this right, it can be done so, but otherwise it shall not be. आपसे क्वेश्चन पूछेंगे which clause says so, तो क्लॉज वाइज आप इसको याद कर लीजिएगा. 32 क्लॉज 1 में क्या है, क्लॉज 2 में क्या है, क्लॉज 3 में क्या है, क्योंकि देखिए ये पॉलिटी का पार्ट भी है. इतना मोटा मोटा सब लोग पढ़ते हैं, जीएस में ही पढ़ते हैं सब लोग. तो व्हाट स्पेशली यू आर डूइंग फॉर दिस, यू आर डूइंग द क्लॉजेस भी रट रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से, क्लॉजेस को भी समझ रहे हैं आपको. इट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन. कर लेंगे आप लोग. It is done now. Come to Article 33. Article 33 very very important. Article 33, 34, 35 इस सीक्वेंस में पढ़ते हैं. पावर ऑफ द पार्लियामेंट, किसकी पावर, पावर ऑफ द पार्लियामेंट. व्हाट पावर, टू मॉडिफाई द राइट्स. कब, इन एप्लीकेशन टू द फोर्स. देखिए क्या कहता है, पार्लियामेंट में डिटरमाइन what, to what extent any of the right shall be restricted or abrogated. समझिए इस बात को. मैंने क्या किया है, मैंने आर्टिकल 33 की क्लॉज जो पहला पार्ट है वहां से और लास्ट के उसको कनेक्ट कर दिया है. कैसे किया मैं समझाता हूं आपको. इसको आपको इस तरह समझना पड़ेगा. यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दिस फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्सेस. चलिए पहले मैं आपको वैसे समझाता हूँ, जनरल समझाता हूँ इसको. दिस इज राइट. देखिए कुछ फोर्सेस हैं जिनको हम करते हैं मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, दीज आर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ये वन कैटेगरी हुई, इनको ध्यान से देखिए बेटा. नंबर 1 कैटेगरी ए में members of armed forces. number 2, members of forces charged with the maintenance of public order. लोग शांति को बनाए रखने की जिनकी जिम्मेदारी है, यानी कि पुलिस, यानी कि पीएस, अर्धसैनिक बल हो गए. तो these are the forces. armed forces कह लीजिए, paramilitary forces कह लीजिए, पुलिस कह लीजिए. these are 2 categories. armed forces as well as what, police forces, the forces which are responsible to maintain the peace and within the India. So like it is the police, it may be the PSC, it may be the other forces which can be deployed here. तो 2 हो गया. Number 3rd category is what, persons employed in any bureau or other organization for intelligence or counter intelligence. ये 3rd category हो गई है. कौन से व्यक्ति हैं ये 3? 3rd कैटेगरी कौन सी आ गई, ऐसे रॉ, IB, CID. These are the persons who are employed in any bureau or organization who is dealing with what, for the purposes of intelligence or counter intelligence. ये 3rd कैटेगरी हो गई. And now come to the 4th. These are the persons who are employed in the telecommunication systems. What? Telecommunication systems to serve A to C, military, paramilitary, raw, IB, जिनका जिक्र हमने किया अभी A to C में, उनके लिए टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में जो लोग काम करते हैं उनकी. तो these are the 4 categories of the persons. आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इन कैटेगरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके साथ ये अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज कर पाएं और उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहे. इन दीज 4 कैटेगरीज ऑफ persons employed in the armed forces responsible for maintaining public order, persons employed in the counter intelligence or counter intelligence units. Number 4th, the persons employed in telecommunication systems of the above 3. इन 4 कैटेगरीज के लिए it is very important that there should be discipline among them. There should be the rules such that they can discharge their duties properly. So to achieve this goal of maintenance of discipline, discharge of proper duty, Parliament has been empowered.
पार्लियामेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड कि इनके राइट्स को कुचल दो, मॉडिफाई कर दो, जैसे चाहे कर लो, धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, यूनियनबाजी नहीं चलेगी, समझे क्या, आर्टिकल 19 की फ्रीडम नहीं मिलेंगी। सो यही जरूरी था और यही कर दिखाया आर्टिकल 33 ने। तो ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट समझाया आपको, लेकिन इसके बाद में समझना क्या जरूरी है, समझना जरूरी है कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, और फिर इसलिए हमें दोबारा देखना पड़ेगा। तो दीज वर द 4 कैटेगरीज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। पहले प्लीज सी दिस, मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, मेंबर्स ऑफ द forces which are charged with the maintenance of public order, second category. And third category is this, persons employed in intelligence and counter intelligence organizations. And fourth category is the telecommunication systems persons. These are the 4 categories before you. So अब पढ़िए इनको ध्यान में रखते हुए, पार्लियामेंट में बाय लॉ डिटरमाइन पी फॉर प्लिम्स, कानून बनाकर ये निर्धारित कर सकती है संसद, टू व्हाट एक्सटेंट एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी रिस्ट्रिक्टेड और एब्रोगेटेड। तो संसद कानून बना करके, पार्लियामेंट में बाय लॉ, ध्यान रखना, पार्लियामेंट बाय लॉ may determine to what extent their rights should be restricted or abrogated. उनके राइट्स को, उनके अधिकारों को किस सीमा तक रेस्ट्रिक्ट किया जाए, किस सीमा तक एब्रोगेट किया जा सकता है। तो दिस राइट इज विद व्हाट, पार्लियामेंट। हाउ पार्लियामेंट कैन एक्सरसाइज दिस राइट, दिस राइट कैन बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट बाय मेकिंग द लॉ। सेकंड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर, यहाँ से what is the purpose for abrogation or restriction? The purpose is that for the proper discharge of their duties or to maintain discipline among them. तो मैंने आपको एक होलिस्टिक व्यू भी समझाया, फिर फ्रेजेस में ब्रेक करके भी समझा दिया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। अब मुझे बता दीजिए आपको समझ में आया या नहीं आया। दिस इज व्हाट यू कैन से समरी, पार्लियामेंट may by law determine what, to what extent any of the rights conferred by this part, that is the fundamental right, be restricted or abrogated to ensure proper discharge or discipline maintenance. Come on, I believe कि आपको अच्छी तरीके से हो गया होगा अभी ये।